Hello students, now see the exercise of this chapter and first part has been over. Now see the second part. So in the second part, here the answer the following questions. Okay, so what is an operator? Name the different types of operator. Explain the following. What is ternary operator? Explain with the help of an example. Then difference between the following. So all these questions you can do by seeing the previous video of this chapter. मीन्स आप जिस चैप्टर के मैंने जितने भी वीडियोज बनाए हैं उन वीडियोज को आप ध्यान से देख लीजिए और सब में आपको ये आंसर मिल जाएंगे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. हियर अवर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so here next question is difference between an operator and an expression. So its answer also you can get in the video. Now question number 7 you see, if m is equal to 5 and n is equal to 2, then what will be the output of the m and n after execution of the following statements. Here two questions, part A and part B. So see that how will you solve it. m minus equal to n. So first of all एक्सपेंड इट मीन्स m इज इक्वल टू m माइनस n. सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे. ये हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है तो इसका मीन्स है m इज इक्वल टू m माइनस n. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. m इज 5 एंड n इज 2. सो 5 माइनस 2 m इज 3. सो आंसर विल बी 3. नाउ सी द सेकेंड b, m प्लस m अपॉन n. सो सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. 5 plus then m is 5 then slash n is 2. now n is equal to 5 plus. now 2 से 5 को मैं डिवाइड करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.5 होगा. बट ये दोनों हमारे इंटीजर हैं. जब ये दोनों नंबर्स हमारे इंटीजर होते हैं तो हम जो यहाँ पर आंसर लेते हैं वो इंटीजर वैल्यू लेते हैं. तो मीन्स जो हमारा 2.5 है तो उसमें से हम 0.5 नहीं लेंगे. ओके, ओनली इंटीजर पार्ट 2 लेंगे. So write here 2. Now solve it. This is your answer. N is equal to 7. Your next question is, state the difference between this operator and this operator. Single equal to and double equal to. So see, this is an assignment operator. ये जो हमारा सिंगल इक्वल टू है ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है. जैसे ये देखिए हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इधर एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व होगा. सॉल्व होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारा इसमें स्टोर होगा. स्टोर होना को हम लोग असाइन होना भी बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड आल्सो असाइन. सो दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर. and double equal to, it is your relational equal to operator. It is used to check the equality of the numbers. Okay, you can write also this is used to check the equality and this is used to store the answer or the value of an expression or the variable in the variable. Now see the question number 9. In the question number 9 given a is equal to 0, b is equal to 10, c is equal to 40. Now we have to find the answer of this. So first now see that how will you solve it. Minus minus b. So first of all write the current values. A how much 0, b how much 10 and c is how much 40. Now solve. Minus minus b. So here minus minus is before, this is your prefix. तो prefix में हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देते हैं. तो ये 10 है, ये कितना हो जाएगा चेंज होने के बाद 9. सो यूज हियर 9. देन प्लस c. सो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ दिस. नाउ लिसन हियर, दिस इज योर c प्लस प्लस. So in C++ this is your postfix operator. So in postfix operator first we use the current value. तो यहाँ पर 40 है, 40 को यूज करो एंड यहाँ पर यूज करने के बाद अब तुरंत इसको चेंज कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 41. नाउ प्लस b. b इज हाउ मच नाउ 9. b अब हमारा कितना है 9 तो यहाँ पर 9 लिख देंगे. नाउ एड ऑल. 9 + 9 18 and plus 40, it will be your 58. So answer of A is 58. It means जो हमारा A में 0 है, 0 के प्लेस पर 58 आ जाएगा. ऑलराइट.
नाउ सी दिस लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लाइन का वर्क क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा डबल कोट्स में लिखा होता है वो हमारा कंप्यूटर एज इट इज देता है स्क्रीन पर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए इज इक्वल टू, ये डबल कोट्स में लिखा है तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ओके, नाउ प्लस ए, तो यहाँ पर ये जो हमारा ए है ये वेरिएबल का करंट वैल्यू, तो वेरिएबल की हमारी करंट वैल्यू कितना है 58, तो यहाँ पर 58 प्रिंट होगा। अंडरस्टूड ना। सो योर आंसर विल ए इज इक्वल टू 58। यहाँ पर डबल कोट्स में ए इक्वल टू लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू प्रिंट होगा एंड प्लस ए, तो ये ए का हमारा जो भी करंट वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज इन द क्वेश्चन नंबर 10? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इफ x इज इक्वल टू 5? क्वेश्चन नंबर ए 5 इंटू प्लस प्लस एक्स एंड सेकेंड बी इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस प्लस। सो सी द फर्स्ट वन, x इज 5। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन 5 देन इनटू, ये प्लस प्लस एक्स है तो प्लस प्लस एक्स मतलब प्रीफिक्स, इसमें प्लस प्लस पहले लगा है तो हम इसकी वैल्यू को +1 पहले ही कर लेंगे। तो 5 है तो कितना हो जाएगा 6। नाउ 5 6 जा 30, सो इट्स आंसर इज 30। नाउ सी हेयर 5 इंटू एक्स प्लस प्लस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस 5 देन इनटू एक्स प्लस प्लस, इसमें प्लस प्लस ऑपरेटर इज आफ्टर, तो आफ्टर है वेरिएबल के, तो हम क्या करते हैं वैल्यू को, करंट वैल्यू को लिख लेते हैं और उसके बाद चेंज करते हैं। तो अभी हमारा x 5 है तो यहाँ पर हम 5 यूज करेंगे और यूज करने के बाद ये मेमोरी में 6 हो जाएगा। 6 यहाँ कहीं पर भी यूज नहीं होगा। ओके, ये तो कहीं आगे और प्लस एक्स या डिवाइड एक्स या कुछ भी x लिखा होता है तो हम लोग 6 यूज करते हैं, बट ये 6 अब कहीं आगे यूज नहीं हो रहा है तो हमको 5 इंटू 5 ही ओनली कैलकुलेट कर देना है एंड योर आंसर विल बी 25। तो दोनों में डिफरेंस आपका क्लियर है। ओके, यहाँ पर जब हमारा प्लस प्लस एक्स पहले था तो आंसर हमारा 30 आया और जब हमने एक्स प्लस प्लस मतलब पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को यूज किया तो हमारा आंसर 25 होगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 9। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड में वैल्यूज लिख दीजिए, ए 2, बी इज हाउ मच 3, C is equal to 9. Solve. Substitute all the values. A how much 9. So write here 9 minus B plus plus. So B plus plus this is your postfix. So in postfix first of all we use the current value. So current value हमारा कितना है 3 and अब ये हमारा memory में changed, it will be changed to 4. Now into minus minus C. So this is your prefix. In prefix first we change, तो पहले इसको चेंज करेंगे। ओके, C इज इक्वल टू 9 है, देन माइनस माइनस हमको करना है, मीन्स इसको डिक्रीज कर देना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 8। सो इंटू 8 इज इक्वल टू, नाउ सॉल्व 9 माइनस 8 3 जा 24 एंड इसको आप सॉल्व कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर -15। Now see 11th part B, A into plus plus B mod C. Okay, so A is 2, B is 3 and C is 9. So substitute all the values. A is 2, so write here 2 into plus plus B. So this is your prefix, means ये पहले लगा हुआ है तो पहले इसको B को चेंज करो। B हमारा कितना है 3, so plus plus B it will be 4. Then mod C, how much C? 9. Okay, now we have to do, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली होता है क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवीजन साइन एंड मॉड साइन, इन तीनों साइन में हमको जो भी पहले मिलेगा उसको पहले हमको सॉल्व करना होता है। यदि हमारा इस साइड से यदि हमको मॉड पहले मिला तो मॉड सॉल्व करेंगे, यदि हमको डिवीजन पहले मिला तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले मिला तो मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा। मीन्स ये जिस ऑर्डर में लिखे होंगे उस ऑर्डर में हमको पहले सॉल्व करना है। नाउ 2 इंटू 4, सो 2 4 जा 8, मॉड 9। नाउ 9 से 8 को मॉड करेंगे तो लिसन, अभी देखिए हमारा क्या है, 9 से
8 को हम क्या करते हैं डिवाइड, तो 9 0 जा 0, what is the remainder 8, so your answer will be 8, so its answer will come 8. Now see this, a is equal to 5, b is equal to 9, a plus equal to, this is your question. तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज्ड एंड प्लस है, इट मीन्स वी हैव टू add a in this side. So first of all you write down a plus and then this whole statement. Now see here, this we have written. Now substitute a कितना है 5, so write here 5, then plus a plus plus, this is your postfix operator. तो पहले 5 को यहाँ पर लिख लीजिए एंड लिखने के बाद अब इसको यहाँ पर कितना कर देंगे 6, देन माइनस प्लस प्लस बी, सो दिस इज योर प्रीफिक्स, तो पहले इसको चेंज करेंगे, इट विल बी 10, नाउ राइट हियर 10, देन प्लस ए इज हाउ मच 6, सो राइट हियर 6, नाउ सॉल्व इट, 5 प्लस 6 and 5 11, 11 minus 10 it will come 1 and 5 plus 1 is equal to 6, so this is your answer. Now see the question number 13, give the output of the program snipped, a is 10, b is 12, if a greater than or equal to 10, a plus plus, else plus plus b, system dot out dot println, and this is your, okay, so we have to find its answer, what answer will come. A is equal to 10, b is equal to 12. Now if a कितना है हमारा 10, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, देन लिसन इस कंडीशन को चेक, 10 इज ग्रेटर देन 10, नो 10 हमारा 10 से ग्रेटर नहीं होता है. नाउ हियर इक्वल टू आल्सो, सो 10 and 10 बोथ आर इक्वल, सो इट्स आंसर विल कम ट्रू. तो इस स्टेटमेंट का हमारा आंसर कितना हो गया ट्रू. तो ये हमारा इफ एल्स है, सो इन इफ एल्स इफ द कंडीशन इज ट्रू देन वी हैव टू सॉल्व दिस, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन वी हैव टू सॉल्व दिस आफ्टर एल्स. सो हियर द कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल सॉल्व ए प्लस प्लस. सो हियर दिस कंडीशन इज ट्रू, तो हमको ए प्लस प्लस सॉल्व करना है. सो ए प्लस प्लस हम सॉल्व करें, देखिए ये हमारा सिंगल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चाहे प्लस प्लस हमारा पहले हो चाहे हमारा प्लस प्लस बाद में हो, ए विल चेंज. तो ए हमारा कितना है ए 10 है, ये चेंज होकर के हमारा कितना हो जाएगा 11, सो इट विल बी 11, एंड बी इज स्टिल 12, बी इज स्टिल 12, एल्स प्लस प्लस बी, दिस कंप्यूटर विल नॉट सॉल्व, क्योंकि ये हमारा कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, एल्स के बाद का स्टेटमेंट रन नहीं होगा, तो इसको हमको टच ही नहीं करना है, ओके, एल्स के नीचे का सॉल्व भी नहीं करना है. यहाँ पर आ जाइए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सो दिस इज द लाइन विच गिव्स अस आंसर. ए इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, ए इक्वल टू, देन प्लस ए हमारा कितना है 11, सो हियर इट विल प्रिंट 11, देन डबल कोट्स में एंड बी इक्वल टू, एंड बी इक्वल टू, ये हमारा इस टाइप से लिखा हुआ है, तो इसको इसी टाइप से लिखा रहने दीजिए, ओके, देन प्लस बी, देन बी हमारा हाउ मच इज 12, सो राइट हियर 12, सो योर आंसर विल ए इज इक्वल टू 11 एंड बी इज इक्वल टू 12. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. ये हमारा इफ एल्स में लिखा हुआ है, इसको टर्नरी में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो लाइक दैट. तो मैंने आपको पहले के वीडियोस में इफ एल्स को टर्नरी में कन्वर्ट करना एंड टर्नरी को इफ एल्स में कन्वर्ट करना, आई हैव टोल्ड दिस ऑलरेडी, ओके, सो लेट अस सी अगेन. सो हियर नाउ सी आंसर इज कमिंग इन टैक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टैक्स इक्वल टू, अब सबसे पहले हम इस इफ के बाद जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना कंडीशन, दैट यू राइट डाउन, इनकम लेस देन आर इक्वल टू 1 लाख, देन पुट द क्वेश्चन मार्क साइन, ओके, क्वेश्चन मार्क साइन, एंड आफ्टर इट ये इफ के नीचे इधर इक्वल टू के इस साइड में जो लिखा है ना दैट यू राइट डाउन, सो हियर इज रिटन 0, सो राइट डाउन 0, देन
कोलन, आफ्टर कोलन एल्स के बाद जो टैक्स इक्वल टू लिखा हुआ है ना राइट साइड, सो राइट डाउन ओनली द ऑफ द राइट साइड 0.1 into income, close this in a bracket, okay, and now put semicolon sign. So this is in the ternary operator. Now see the 15th also. How will you change it? Here the answer is coming in D, so write D equal to, first of all write down the condition. What is condition? P greater than 5000. Now put question mark. After question mark, what is written below the if? P into 5/100, ये वाला, okay, this you wrote. Then put colon. Now else के नीचे जो आपका लिखा हुआ है this you write down. What is written? 2 into P/10 and put semicolon. So this is in the ternary operator. Okay students, so like this our chapter 4 is complete. Okay, so again I am saying that you watch all the videos of this chapter again and again, okay, because this is very important to understand the Java. Even this is the beginning period of all your, okay, so all the concepts should be clear. So make the concepts clear. Whenever you get the time, you watch the video, okay. So like the video, subscribe my channel, and if you want to share it to your friends, you can share it. Thank you for watching and have a good day.